morning students. Welcome to biology class of standard 10. In this class we are discussing the life process, and the fragment of life process is respiration. In this video we are going to discuss about the respiration. Generally, we mix the respirations with the activity that we inhale or exhale the air. सांस लेना छोड़ना ये respiration हो गया, but technically it is different. Inhaling air and it goes to lungs, and exhaling air from the lungs through the nostril passage. Only this part is called breathing. And from the lungs, the oxygen gets diffused into blood, and blood carry it to the different cell where this oxygen is used to oxidize the food, especially that is present in the form of glucose, breaking down, releasing energy, and then carbon dioxide as the waste product is taken by the blood to the lungs. This portion is called respiration. It means this is a two basic difference: breathing, inhaling oxygen and exhaling oxygen. सांस हवा लेना, हवा अंदर गया बाहर निकल गया, ये कहाँ तक है? ये लंग्स तक रिलेटेड है. लंग्स से डिफ्यूज होकर ब्लड का जाना, ब्लड में ऑक्सीजन का जाना, और फिर लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लाएगा. ये फॉर्मेशन कैसे हो जाती है? It is when the food in the cell is oxidized. अब हम जो एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, एक जनरली कंफ्यूजन हम लोग बोलते हैं. हम सांस क्या लेते हैं? व्हाट वी इनहेल, जनरली वी से वी ऑक्सीजन. सांस में क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज नॉट द टेक्निकली 100% करेक्ट. ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल एयर, थोड़ा सा अंतर है. क्या अंतर है? देखिए, इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर. नाइट्रोजन it contains 78%. Oxygen 21%. Carbon dioxide 0.03%. Other 0.97%. But when we exhale, nitrogen is 78%, oxygen decreases, it becomes 15 to 16%, and carbon dioxide from here it goes to 4 to 5%. It's almost remaining the same. Where we find the change? We find the change in the volume of percentage of oxygen and carbon dioxide. When we inhale, जब सांस लेते हैं, in that one the volume or percentage of oxygen is more, carbon dioxide is less. When we exhale, it has the less oxygen and amount of carbon dioxide has increased. How it has increased? It has happened during the cellular respiration inside the cell.
This oxygen is used to break down the food, that is glucose, and as a byproduct carbon dioxide has been released, which is thrown out of the body through the nostril passage. It means we have got a basic difference between inhale and exhale air. Now questions comes, how we will show that exhale air contains the carbon dioxide. The air that we exhale, it contains the carbon dioxide. कैसे साबित करेंगे? साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए we have to take a test tube. In which test tube we have to keep a fresh lime water. Why fresh lime water? Because lime water, that is lime water, that is it starts reacting with the atmospheric carbon dioxide and its color changes. That's why it is supposed that we have to take a fresh lime water, and in a test tube we have taken a fresh prepared lime water. And we start blowing it. If we blow it, gases enters and its colors changes to milky. The conversion of calcium hydroxide or lime water to milky suggests that exhaled air contains carbon dioxide. कितना चाहिए? Practically it has been shown that 3.05 grams of CO2 is required to convert 1 liters of waste milky. If we say practically how much is required, that's why if we keep the lime water, fresh lime water in open air, and that the same type of fresh lime water we start blowing the air from using our mouth, then in which we are blowing it, it turns quickly milky, then that is left in the open atmosphere. क्यों? क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट्स है, परसेंटेज है, इट इज ओनली 0.03%, बट when we exhale it percentage increases to 4 to 5%. This experiment certainly shows that exhaled air contains all the gases, but the amount of carbon dioxide has increased and amount of oxygen has decreased. Breathing rate of small children varies from 30 to 60. Now we can differentiate between the breathing and respiration. Breathing is biophysical process. Respiration is biochemical process. Breathing, biophysical process, and respiration, biochemical process. It is a voluntary action, breathing, and respiration is involuntary. For a time being, we can hold our breath. Can you hold your rate of respiration? Because we don't have any method to control it. That's why we say it is involuntary. एक डिफरेंस तो आ गया कि हमारा वॉलंटरी बायोफिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग, और रेस्पिरेशन है इट इज ए बायोकेमिकल बट इट इज इनवॉलंटरी प्रोसेस.
Site where the breathing take place. Breathing take place in the lungs and respiration take place inside the cell. एक लंग्स में एक सेल में, कंपेयर नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज है. ब्रीदिंग टेक प्लेस करता है लंग्स में, रेस्पिरेशन टेक प्लेस करेगा सेल के अंदर. Breathing में no energy is released. We have to keep in mind, no energy is released during the process of breathing, but in respiration, energy is released. And whatever work we are doing it, all the action, our day-to-day action require the energy. ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी हमारे सेल में स्टोर होता है और हमारे सेल में ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में. ये एनर्जी क्या एनर्जी है? तो सोलर एनर्जी is converted into the chemical energy in the food, and that when food is broken down into the very small pieces and it is oxidized, then that energy is rest in the cell in the form of ATP. Carbon dioxide plus water gives us glucose plus oxygen. This is not a balance, but I am giving you. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से. वाटर फ्रॉम द रूट. दोनों मिला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और ये बनाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज प्लांट यूज कर लेता है, जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स एंड एक्सेट्रा. वी यूज इट स्टार्च. और ये स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारे बॉडी में डाइजेशन के फॉर्म में सेल तक जाते जाते अगेन ग्लूकोज बना. ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? अब ये ग्लूकोज पहुंच गया, ये ग्लूकोज सेल में पहुंच गया. अब इस सेल में जो हम सांस लिए उसमें ऑक्सीजन गया, ये रिएक्शन करेगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती है. ये मिलके, तो ये सनलाइट कहाँ गया? सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. वही केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में सेल में किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या दिया हमको? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ये हमारा फोटोसिंथेसिस है. सेल के अंदर में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमको दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो हमने नेचर से लिया, हमने नेचर को दे दिया. तो हमारे पास बच क्या गया? क्या रह गया? हमारे पास सोलर एनर्जी रह गया, जो फूड में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था. एंड दैट कन्वर्शन is stored in the cell in the form of ATP. अब हमने तो समझ लिया है कि डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन से एनर्जी कैसे निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. डिफरेंट पाथवे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. Different pathway. If we start glucose, it is C6H12O6. In each part, in the cytoplasm, it is broken down into the carbon 6 is there in carbon 3 carbon molecules, and it is broken down into C3H6O3 and C3H6O3. It is broken down into the two parts, and where this take place, this reaction take place in cytoplasm. A small amount of
energy is released. It means this is called pyruvate. The breaking down of glucose inside the cytoplasm पहला काम होता है जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है वो दो छोटे छोटे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। कहाँ टेक प्लेस करता है? दिस पार्ट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। इस जो 3 मॉलिक्यूल्स का बन गया है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पाइरुवेट। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे 3 डिफरेंट पाथवे। वन ए बी in east. It means absence of O2. In the absence of O2, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ईस्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। केक बनाने के लिए या फिर डोसा बनाने के लिए वाइन और बियर में फर्मेंटेशन जरूरत पड़ जाती है। मतलब ईस्ट हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहां क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। When one pyruvate is broken down by the yeast in the absence of oxygen, it is called anaerobic reaction. It forms C2H5OH plus 2CO2 plus energy, it is 2 ATP. इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 2 ATP के बराबर बहुत ही कम एनर्जी यूज होती है ईस्ट में, फर्मेंटेशन में। और ईस्ट हमारे लिए क्या है? जरूरी हो जाता है। फर्मेंटेशन जरूरी होता है। वाइन बनाना है, बियर बनाना है, डोसा बनाना है, इडली बनाना है, बहुत सारी जगह खाने पीने की चीज में, केक भी बनाना है, वहां जरूरत पड़ जाती है। Another pathway that we can say less O2, less supply of O2, ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा। In human itself we can say in human it is the anaerobic रिएक्शन रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है, ईस्ट में होता है, इसको फर्मेंटेशन दिया। क्या ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है? ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है। इसमें लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम है। स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था मैंने सबको बताया था कि 1 ब्रीथ में 1 मिनट में हम कितना लेते हैं ऑक्सीजन, और इफ वी डिवाइड इट 1.8 to 2.4 ग्राम है, इसको डिवाइड करेंगे 12 to 18 और फर्दर डिवाइड इट इट सेल हाउ मच ऑक्सीजन इज नीडेड बाय इटसेल्फ। व्हेन वी गो फॉर द विगरस एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया फॉर द मेकिंग द मसल्स। अब समझिए, हम सिर्फ हैंड को अप एंड डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर मेकिंग द बाइसेप एंड ट्राइसेप टू मूव फास्टर। अब यहाँ के मसल्स ज्यादा वर्क कर रहा है तो इस मसल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बट हम सांस लेते हैं तो इसका जो फिक्स राशन कोटा है उसी के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब कि जब विगरस एक्सरसाइज करने लगे तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज दिस मसल्स बाइसेप एंड ट्राइसेप्स रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? उसके पास कम होगी।
जैसे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो वो जो मेन प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो नहीं बनाता है, ये बनाएगा आपको लैक्टिक एसिड। It forms the lactic acid plus energy. It is also 2 ATP। ये लैक्टिक एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। CH ये कार्बोक्सिलिक हो गया, ये आपका लैक्टिक एसिड हो गया। एनर्जी रिलीज होगी, हाउ मच एनर्जी रिलीज? वेरी लेस, 2 ATP। ये एसिड वेपोराइज हो जाएगा अगर गर्म वाटर से, हॉट वाटर से, गर्म क्लोथ से इफ वी कंप्रेस इट देन वी फील द रिलीफ। ये रिलीफ क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बना वो वेपोराइज हो जाता है, और जैसे इसकी क्वांटिटी हमारे मसल्स में कम हो जाएगी वी फील द रिलीफ। तो विगोरस एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज का पूरा बॉडी जब हम एक्सरसाइज करते हो फिर भी रन, उस समय भी हमारे पूरे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। एंड व्हेन वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन व्हाट वी इट, सांस ज़्यादा तेज लेते हैं, फास्ट ब्रीथिंग फास्ट। जब सांस नाक से नहीं काम चलता, नोस्ट्रिल पैसेज से काम नहीं चलता, वी स्टार्ट पैंटिंग यूजिंग द एयर बाय आवर माउथ। एंड व्हेन वी इनहेल आवर माउथ एंड नोज बोथ वी से इट इज पैंटिंग, हाँफ रहे हैं। क्यों हाँफ रहे हैं? बिकॉज सिंपली थ्योरी हाँफना का है कि हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और सिर्फ सांस लेने से नोस्ट्रिल पैसेज से उतनी ही ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जैसे हम मुंह से भी सांस लेते हैं। एंड फाइनली व्हेन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, इट मीन्स एरोबिक रिएक्शन विल टेक प्लेस। उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। ये आपको 30 से 32 ATP तक एनर्जी रिलीज होती है। मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज व्हेन द फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जो फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, व्हेन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सांस लेने का तरीका और ऑर्गन्स अलग अलग हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी यूज द नोस्ट्रिल पैसेज मीन्स लंग्स। एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म, लीचेस एक्स्ट्रा, वो कहाँ से लेता है? उसका मॉइस्ट स्किन होगा, थ्रू द मॉइस्ट स्किन दे इनहेल इट, it is called cutaneous respiration. When they take it by the moist skin, तब गीला, कभी देखोगे अर्थवर्म को, उसका बॉडी हमेशा गीला टाइप का, शाइनिंग टाइप का दिखाई देगा, वो रेस्पिरेशन करता है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो इंसेक्ट होता है दे एक्सपायर थ्रू द ट्राइचिया। फ्रॉग दोनों कंडीशंस में, जब बाहर होगा वो लंग्स का यूज करता है, जब वो हाइबरनेशन में होगा देन इट यूज द स्किन। हाइबरनेशन मतलब जमीन के अंदर रहता है, चला जाता है, हाइड हो जाएगा। तो डिफरेंट एनिमल्स यूजेस द डिफरेंट ऑर्गन्स। इंसेक्ट का हो गया, फ्रॉग का हो गया, आपको अर्थवर्म का हो गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का हो गया। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है, स्पेशली द फिश, दे यूज द गिल्स, लेकिन उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में। क्यों फास्टर हो जाएगा? बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस डिजॉल्व इन वाटर, सो लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द वाटर। टू यूज इट दे हैव टू ब्रीथ द फास्ट। मुंह से पानी लिया, गिल्स के थ्रू निकाला, और गिल्स में जो कैपिलरीज है वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इट मीन्स
In this video we have got the basic concept of the difference between the breathing and the respiration. Now in the next video we will discuss about the mechanism of breathing. So thank you, go through this video, and if you like it, certainly share it.